Welcome students to the online class of the Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Amruta Kulkarni and we are going to learn the first chapter of science, the living world, adaptation and its classification. In the previous part we have seen the adaptation in plants. Now we are going to see the adaptation in animals. See, we know many animals in our surrounding. We can see their food habits, characteristics of their body structure like vertebral column, wings, gills, tails, etc. See, what do the difference see between the terrestrial and aquatic plants? We have already discussed the what is the meaning of terrestrial and aquatic animals and all. Now we will see the adaptation in animals. As compared to terrestrial animals, the skin and the body shape of aquatic animals appears to have undergone changes. Fishes have scales on the skin and fins on the body so that it can easily swim in the water. Their body tapers towards the both ends like a spindle. उनकी जो बॉडी होती है वो दोनों एंड से पॉइंटेड होती है so that it can easily swim in the water. Fish breathe with the gills instead of nose. उनको ब्रीथ करने के लिए गिल्स होते हैं. Their eyes have a transparent eyelids. They have air bladders within the body to help them afloat. We can see the figure of fish where the gills we can see, scales on the body of fish and the fins which helps to float them. As the frog and duck have webbed toes. Webbed toes means they have a skin layer between its toes. They can use their legs like oars. वो अपने पैरों का इस्तेमाल ओर जैसा कर सकते हैं. Water flows off the waxy feathers of the bird like duck and water hen. Webbed toes, slippery, smooth skin, and a triangular head help them to swim easily through the water. They can live on the land as well as in the water due to their ability to breathe through the skin in the water and using the nose and the lungs on the hand. The typical color of the frog's back help it to hide amongst the grasses. So these are all the adaptations we can see in the frog, means amphibian plant animals. Let's move toward the next point, that is adaptation in the forest and grassland animal. Carnivorous animal like the carnivorous मतलब मांसाहारी मांस भक्षण करने वाले जो एनिमल्स होते हैं लाइक वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर एंड लॉयन, दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स. उनके जो पैर होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनकी वजह से वो तेज़ भाग सकते हैं. एंड दे कैप्चर देयर प्रे मीन्स दे कैन कैप्चर देयर फूड. दे हैव क्लॉज एंड देयर कैनाइन टीथ. कैनाइन टीथ मतलब जो पॉइंटेड टीथ होते हैं सामने वाले वो बहुत शार्प होते हैं. What is the function of such a teeth? पर इसका उपयोग क्या हो सकता है? Tiger have padded paws. This enables them to silently stalk their prey and capture it easily. उनके पैरों के जो पंजे होते हैं वो बहुत मतलब पैडेड मतलब एकदम सॉफ्ट होते हैं. जब वो चलते हैं तो उनके शिकार को पता नहीं चलता कि अपने पास शिकारी आ रहा है. The eyes of the predatory carnivores are located in front of their head. और the eyes of the predatory carnivores मतलब जो मांस भक्षित करने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी जो आँखें हैं वो ऑलमोस्ट हेड पे होती है. It helps them to spot their prey from a long distance. उसकी वजह से वो दूर दूर तक अपना प्रे देख सकते हैं. The eyes of the herbivorous are below the forehead. आइज़ ऑफ द हर्बीवोरस. हर्बीवोरस मतलब जो ग्रास वगैरह जैसी चीज़ें खाते हैं उनकी जो आँखें होती है वो फोरहेड पे होती है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड. दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन. उसकी वजह से वो ऑलमोस्ट बहुत से एंगल तक के देख सकते हैं. विच हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रेडेटर. जो उनका रक्षण कर सके उनके भक्षक से. देयर लेग्स आर लॉन्ग and tapering with her strong hooves which enables them to run fast. उनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं. लंबी होने की वजह से वो बहुत
दूर दूर तक जंप कर सकते हैं, बड़ी जंप ले सकते हैं और फास्ट रन कर सकते हैं. Their long and freely moving ears can receive the sound from long distance and different direction. उनकी जो मूवेबल ईयर्स होते हैं वो दूर दूर तक से साउंड रिसीव कर सकते हैं और कहाँ से आ रहा है ये भी उनको समझ में आता है. डियर एंड ब्लैक बग्स हैव द कलर दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग. कभी कभी तो उनकी स्किन का कलर ऐसे होता है कि जैसे सराउंडिंग के साथ वो मैच हो जाए, इसलिए पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे प्रे है करके. देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर चूइंग द टफ प्लांट मटेरियल. और उनके जो दांत होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी वजह से अगर प्लांट मटेरियल स्ट्रॉन्ग हो तो वो चबा के खा सकते हैं. एडप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स. डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में पाए जाने वाले एनिमल्स. डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सीवियर स्कैरसिटी ऑफ वाटर. अभी हमें पता ही है कि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमतरता होती है. हेंस द डेजर्ट एनिमल्स हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी. सो डेजर्ट एनिमल की जो त्वचा होती है वो थोड़ी सी जाड़ी मतलब मोटा थर होता है, जिसकी वजह से पानी का इवेपोरेशन कम हो. देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ अ फ्लैट एंड कुशन सोल. उनके पैरों के तलवे भी सॉफ्ट होते हैं. द नोस्ट्रल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ द स्किन. जो नाक की पुड़ी होती है वहाँ पे भी स्किन के बहुत से फोल्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से रेगिस्तान की जो रेत है वो इजीली उनके नाक में ना जाए. द आई लैशेस आर लॉन्ग एंड थिक. रैट्स, स्नेक्स, स्पाइडर्स, लिजार्ड इन द डेजर्ट लिव इन अ डीप बोरोज. रैट मतलब रैट, स्नेक्स जैसे जो एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स, वो ज़मीन में नीचे बहुत नीचे तक के जाके रहते हैं ड्यूरिंग डे टाइम एंड दे आर एक्टिव एट अ नाइट टाइम. दिन में वो बरों में जाके रहते हैं और रात में वो एक्टिव होने लग जाते हैं. द नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ अ स्नोई रीजन. Adaptation in animals of a snowy region. From the internet, you can see the images of animals like yak, polar bear, white fox, silver fox, mountain goat, Siberian husky dog, and snow leopard. And compare these images with those of similar animals of the tropical forest. You can see a white or silver body color. Long, thick hair on the skin are the typical characteristics of animals of snowy region. मतलब आइसी रीजन में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं जनरली उनकी बॉडी का कलर वाइट या फिर सिल्वर होता है और उनकी स्किन पर बड़े और थिक हेयर्स होते हैं जो उनको बाहर के ठंडे टेम्परेचर से हेल्प आउट कर सके इस चीज़ के लिए. एडप्टेशन इन एरियल एनिमल्स. एरियल मतलब हवा में उड़ने वाले एनिमल्स के लिए. The spindle-shaped body of the birds also minimizes the resistance of the air while flying. If you can observe the shape of the birds flying in the sky, you can see their shape is spindle-shaped body. It helps to minimize the resistance of air while flying. With a hollow bone, a body covering of feathers, and modification of forelegs into wings, their body is light in weight and adapted for flying. उनकी बॉडी में उनकी जो बॉडी होती है वो लाइट इन वेट होती है और उसके ऊपर फीदर्स एंड उनकी जो फोर लेग्स मतलब सामने वाले जो पैर होते हैं उसका कन्वर्जन विंग्स में हुआ होता है. उसकी वजह से उनकी बॉडी लाइट एंड वेट होती है जो हवा में इजीली फ्लाई कर सके. द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट ऑल्सो इज़ लाइट इन वेट एंड द टैपर्स एट द बोथ एंड. इंसेक्ट जो होते हैं मतलब कीड़े, उनकी भी बॉडी लाइट इन वेट होती है एंड टैपर्स एट द बोथ एंड. दे कैन फ्लाई विथ 2 pairs ऑफ विंग्स एंड ऑल्सो वॉक विथ 6 stick like legs. Bat can fly with the help of patagium, a thin fold of skin between their forelegs and hind legs. पैटेजियम, बैट्स में जो पैटेजियम होता है वो फोरलेग और हिंड लेग मतलब सामने वाले 2 पैरों में और पीछे वाले 2 पैरों में रहने वाली त्वचा होती है, वो उस त्वचा के हेल्प से फ्लाई कर सकते हैं. यू कैन सी द वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट इन योर एरिया ऑल्सो. एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स. Observe from the distance how snakes and earthworm creep.
विच और क्रिप मतलब ये रेप्टिलियंस की खासियत होती है. विच ऑर्गन्स डू यूज दे फॉर क्रिपिंग? Are there any special changes for that purpose? Not any such changes. Animal like house lizard, garden lizard, crocodile use their muscles for the creeping. Similarly, they show adaptation in the skin. Soles of feet, पैरों के जो सोल होते हैं उसमें भी उस एडेप्टेशन रहता है. उनका बॉडी कलर. For example, the house lizard and monitor lizard have claws toes. Clawed toes means what? उनके पैरों के उंगलियों में भी चर्बी होती है. एंड थीन सोल बहुत पतली होती है. वेयर एज द स्नेक्स हैव अ स्केली स्किन, जो ग्रिप करने के लिए, वॉल पे ग्रिप करने के लिए उनको हेल्प आउट करती है. नेक्स्ट इज एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स. वी कैन कैटेगराइज द एनिमल एज अ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स. हम लोग एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जैसे कि हर्बीवोर एंड कार्निवोर्स. हर्बीवोर्स मतलब जो प्लांट्स, पेड़ पौधे खा के अपना खाना बनाते हैं, और कार्निवोरस मतलब जो मांस भक्षण करते हैं. स्पेशल एडेप्टेशन आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ईजी. We will discuss this in greater detail in the chapter nutrition. You can see the, for more information you can see the National Geographic Channel, Wild Discovery Channel, etc. to learn about the feeding habits of animals like frog, snakes, birds, mosquitoes and butterflies, etc. एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विथ सराउंडिंग. ब्लेंडिंग मतलब क्या? सराउंडिंग में एडजस्ट हो जाने के लिए क्या एडेप्टेशंस रहते हैं. वी कैन नॉट ईजिली स्पॉट द कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजार्ड एंड ग्रास ऑफर्स. दे गेट कैमोफ्लेज एमडस्ट ग्रासेस, parts of plants like stem, leaves, flower, etc. That is because their color blend with those of their surrounding. अगर आपने बहुत देखा होगा तो ये जो बटरफ्लाइज होते हैं वो कलरफुल रहते हैं, और बहुत बार उनका जो कलर है वो वहाँ के सराउंडिंग से इतना ब्लेंड होता है या फिर मर्ज होता है कि जल्दी समझ में ही नहीं आते कि शायद यहाँ पे बटरफ्लाइज बैठे हुए हैं. ये किस चीज़ के लिए? तो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए. Changes that takes place in the various organ and the life process of the organism that enables them to live, feed, reproduce, to perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in the specific surrounding. ऐसे changes जो एनिमल्स को हेल्प करते हैं उनका खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए, उनको जीने के लिए, उनको फूड ऑब्टेन करने के लिए, ये जो सब चीज़ें हैं इसके लिए बोलते हैं एडेप्टेशंस. ऑलवेज रिमेंबर, एडेप्टेशन इज़ नॉट अ सडन प्रोसेस. इट इज़ अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस. ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होने वाली, एंड कंटिन्यूस मतलब लॉन्ग लाइफ चलने वाली. Differences in the structure and appearance of the present day animal and animals of thousands of years ago are the adaptations that occurred according to the prevailing condition. So it is our duty to conserve this diversity. It is our duty to conserve this diversity. Here we will wait and we will see the exercise in the next part. Thank you for watching the video. Please like and subscribe our channel.